sharp 11:15. I'll start a class exactly at 11:15. For you, those who will join after 11:15, today already have joined, will not be able to ask any questions to me because you are not punctual. So actually, I will not enter any questions from you. As I told you, I'll start a class at 11:15. It's 11:15. We actually got little. Let's start a class. Simple interest. Interest, there are two types. One is simple, other is compound interest. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. So, simple interest may interest will be calculated on principal. Suppose rate is 10%, right? 10% per annum. Principal is 5,000. The interest will be 500, right? Every year it will be 500. 500, 500, 500. But in compound interest, what happens? This 500 rupees will be added to the principal. The principal will become 5,500. Next year it will be 550. Again it will be added. Next year it will be 605. So compound interest, my interest is being added to the principal. But in simple interest, interest remains same for all the years. Are you understanding this concept? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Today we'll discuss the concepts on simple interest only. Next class में हम compound interest पढ़ेंगे. So simple interest, these are the questions, fundamental, general questions, finding principal and doubling, tripling questions we'll discuss. जो कि placement के लिए है. But if you're applying for competitive exam, we'll have 2 to 3 more questions like instrument question and dev due questions, which I'll not be teaching in this class. This is the formula. Please write it down. Simple interest is equal to PRT by 100, where P is the principal, R is rate percent per annum, T is the time in years. Simple interest is equal to PRT by 100. As I told you, principal is 5,000. So this principal is 5,000, rate is 10%. 3 साल में कितना होगा? So this is the concept. एक साल में 500, 3 साल में 1500 होगा. क्या होगा 1500? That is the simple interest. बट ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ अगर अपने प्रिंसिपल को ऐड कर दो तो आंसर होगा 6,500. दिस इज कॉल्ड अमाउंट. नो अटेंडेंस लिंक धृतिमान, डोंट वरी अबाउट दिस. डोंट जॉब. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? प्लीज रिस्पॉन्ड. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So all of you tell me the answer in the mic. Already I've discussed. What is the simple interest on 5,000 in 3 years at 10% per annum? 1,500. 1,500. 1,500. This is the formula PRT by 100, right? PRT by 100. 1,500 is the answer. What will be the amount? Can anyone tell me? 6,500. 6,500. So what I'm saying, to solve questions on simple interest, you don't have to use pen and paper. You should calculate in your mind. PRT by 100 is there in the book, but you don't have to apply this concept. How should you calculate? 10% of 5,000, all of you know? 10% of 5,000. 500. 10% of 5,000 is 500. 500 is the interest of 1 year. So 3 साल का होगा 1,500. This is how you should calculate in mind. Mentally, you need to solve this question, right? You don't have to use PRT by 100. So 10% of 5,000 is 500 per year. 3 years for 1,500. How many people are understanding this? Please write Y in the chat box. Let me count the number of Y's. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? What I discussed, 10% of 5,000 is 500 per year. 3 साल में होगा 1,500. Okay. 1 year का में assume करना है.
क्या अज्यूम करना है आपको? क्वेश्चन पूछा गया 3 साल का, 1 साल में 500 होगा और 3 साल में 1500 होगा। अज्यूम क्या करना है? जितना साल का पूछा जाएगा, 4 साल का पूछा जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2000 होगा। जो लोग बाद में अभी ज्वाइन किए आफ्टर 11:15 will not be able to ask any questions to me. If you have joined after 11:15, you won't ask any question to me. Repeatedly I'm saying join fast. I cannot wait for you because I'm so prepared. I'm making the assignment since morning 4-5 o'clock, giving the assignment. But you will join 11:16, 11:17 with पूछेगा कोई attendance लिख दो फिर चलो. Send me the answer. Send the answer to me. I'm giving you 30-second time. Okay, that's good. I'm getting answers. Find the simple interest on 5,000 rupees from 7th August till 19th October. 10%. Time is up. I've received only 20 answers. उसमें से बहुत लोग गलत दे रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं अभी. Thank you, Vineet. और एक दो जन सुबीत, विनीत का करेक्ट है, सायन का करेक्ट है, बाकी लोग सब गलत आंसर दे. यस, सुबीत का भी गलत हो गया. नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग? 60,000 कहाँ से आएगा? 6,000 60,000 कहाँ से आएगा यार? क्या कर रहे हो? कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? ना लिसन. सो इसमें सब कुछ दिया गया, बट टाइम दिया गया डेज में 7th अगस्त टिल 19th अक्टूबर. लेट मी एक्सप्लेन इट यू. कैसे कैलकुलेट करना है? अगस्त में कितना महीना होता है बताओ? अगस्त में कितना महीना होता है? कितना दिन होता है? 31. 7th को नहीं लेना है तो और कितना दिन बचेगा बताओ? 24. 24 डेज. सितंबर में कितना दिन होता है? 30. अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर में 19th को लेना है. इसको एक्सक्लूड करना है, इसको लेना है, और इसको लेना है तो इसको एक्सक्लूड करना है. दिस इज 73 डेज, राइट? सो रेट हो गया 10%, बट ये जो डेज है दैट इज इन डेज दिया गया है, इसको ईयर में कैलकुलेट करना है. 73/365. इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1/5 कैंसिल हो गया. 100 रुपीज इज द आंसर. 73 days. If the time is given in years, so then PRT by 100. If time is given in months, divide by 12. If time is given by days, you need to divide. 73 days is 73/365. If I apply this, the answer will be 100 rupee. Please take the screenshot of this. Try to understand the concept. Have any doubt, you can ask me over mic. Those students who have joined late can't ask me any question today. They can ask me next class. आज जो लोग join किए देर में 2:15 के बाद, they should not ask me any question. They're not sincere. I don't like insincere guys. Is it understood? How many of you are understanding? Please write why. कितने लोग को समझ में आ रहा है? 307 students are there. That's good. So guys, remember, अगर केस होता है तो आपको डिवाइड बाय 365 करना है, राइट? यूजुअली 73 डेज का मल्टीपल्स पूछा जाता है. 73 डेज इज 1/5 ईयर, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. इफ यू नो 73 डेज आ गया तो 1/5 ईयर. 5,000 का 10%, as I told you to calculate in the mind, 500 rupees होता है एक साल में, डिवाइड बाय 5 कर दे तो 100. Calculation is easier, but for that you need to remember that 73 days is 1/5 year, and it's multiple. 146 is 2/5 year, 219 is 3/5. तो 73 का multiple है. कैसे calculate? अगर आपको याद रहेगा, then you can save 2 to 3 seconds time, right? That matters. 3 second, 4 second time matters. So what I told you, that for 10% of 5,000 is 500 for 1 year, 1/5 year 100.
Is it understood? Please respond with the mic. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Tell me the answer. I'm giving you 30-second time. Write the answer to me. Mark the answer to me. Nahin, Sayan. Okay. Sayan is correct. Anyone else? Okay. Rohit का गलत हो गया. 15 seconds left. Jasraj correct. Others correct. Yeah, others का गलत हो गया. Anju is correct. Time is over. So आपको 45 seconds time दिया मैंने. देखो कितना आंसर आप गलत लिख रहे हो. 14 to y 7% is what in fraction? Can anyone tell me 14 to y 7% is what in fraction? 100 by 7. 100%. 3.3. यार क्या 100 by 7? This is 1 by 7. मैंने आपको लर्न कराया था fractions percentage में. 1 by 7 of 7,000 is equal to 1,000 per year. 4 साल में होगा 4,000 rupees. 4,000 rupees is the correct answer. 14 to y 7 or 14.28 is equal to 1 by 7. Shortcut है. Right, 1 by 7 of 7,000 is 1,000. एक साल में 1,000, 4 साल में होगा 4,000. You can solve it in 2 seconds time if you know the fractions. If you have been following me since the beginning, I told in the first class, second class, fractions of percentage are important for 4-5 topics. That is percentage, probability, SI, CI, and DI. If you are not learning fractions, then you will be wasting time. Let me tell you these concepts. Is it taught to you in the class? And I told you to learn it, yes or no? Yes, sir. So 1 by 7 is equal to 14.28. अब याद रखिए, can solve it in 2 seconds time. अगर 16 2/3% में आता है, right? दिया गया 6,000 प्रिंसिपल, इसका 16 2/3 दिया गया तो 1/6 कर देंगे, डायरेक्टली 1,000 हो जाएगा. कितना कैलकुलेशन इजी हो गया. If you use a pen and paper to take a lot of time. If you are not following me, then you are not going to be selected in the written exam. Yes, you are. You will be selected, but for companies like who offers 3 lakhs package. So you should consider yourself, you should join 3 lakh package or 5 lakhs plus package. So this shows your preparation. Okay, moving to the next question. Send me the answer. 30 seconds time. Questions are easy. Send the answer to me. To me only, not to everyone. Time is 30 seconds. Hmm. 325 students are present. Let me see. I've received only 5 answers so far. Thank you very much. All of you are doing correct. Those are giving the answer. That's great. 10 seconds left. Already received 30 answers so far, and all of you are doing correct. Time is up. Total number of answers is to be 60 out of 320 students. Time is 3 years. How many years पूछा गया? PRT by 100 is 900. If you solve, we'll be getting the answers 3 years. But again, I told you should not use pen and paper to solve this kind of question. How? Without using pen and paper, you can get the answer. What is 6% of 5,000? Can anyone tell me? 6,000 of 5. 6% of 5,000. 900. 300. 300. 300 एक साल के लिए इंटरेस्ट है, तो 900 के लिए कितना साल लगेगा बताओ. 900 के लिए कितना साल लगेगा. This is the way you need to solve the question if you want to save time, right? इन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ये सब क्वेश्चन का कंसेप्ट जरूरत पड़ेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई निकालना पड़ेगा, एसआई निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो अगर आप ये सीआई एसआई के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लाइक लॉट ऑफ टाइम, यू आर सेविंग 5 to 10 seconds doing it mentally. Are you understanding Yes, the sir. shortcut without using pen and paper? How to get the answer? All of you, please Yes, respond sir. in the mic. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Simple interest formula is PRT by 100, but it's not required. Yeah, it's not required. Directly you can get the answer 6%. But for that, you need to calculate percentage of a number. मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कंसेप्ट बताया था, हाउ टू गेट परसेंटेज ऑफ नंबर. 6% of 5,000 अगर पता नहीं, 1% 50, 6% is 300. If you do not know, then you cannot get the answer. So I muted all of you. You have to unmute and respond to me because some
of you are having problem in the mic. Moving to the next question. ये question मैंने आपको easy question वैसा ही solve होगा. Tell me the answer. 30-second time you have. Thank you, Ronak. धृतिमान गलत हो गया, चेक करो. इसमें रेट कंसेप्ट विद द सेम PRT by 100. जनरल मेथड में करोगे, पेन पे पुश करोगे तो दिस इज द प्रोसेस. P is 5000, टाइम इज 6, रेट पूछा गया, इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 4%. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव गिवन 4% एक्सेप्ट सम डफर्स जो कि कुछ जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सिंसियर भी नहीं है. 20 कोई लिख रहा है, कोई 33.3 लिख रहा है. आई डोंट नो हाउ. सो लेट मी टेल यू हाउ टू यूज द mental, how to solve the question in mind without using pen and paper. सुनिए कैसे बता रहा हूं मैं. जनरल मेथड यूज ना करके. जनरल मेथड अंडरस्टूड? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द माइक. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. 1200 अगर 6 years में होगा तो एक साल में कितना होगा, बता सकता है कोई? 200. 1200 100. 200 in 1 year. 200 is what percent of 5000? 4%. Yeah, that is the answer. Without using pen and paper, you can solve this question. But for that, you should know how to calculate percentage. 200 5000 का कितना परसेंट है, right? So you don't have to use pen and paper to solve the questions on simple interest. हर साल interest same रहता है, 200 200 200 200, right? Is that clear? Please respond. Should I move to the next question? Yes, sir. Yes, sir. So these are the basic sequence. If any exam is asking this kind of question, they will give a 30 question to solve in 15 minutes. So you need to be very fast. जो मैंने अभी तक बताया हूँ, अगर आपको समझ में आया होगा, then you can solve. This is the previous question. AMCAT में ये है. Please send the options. Don't write the answer. Send the correct options to me. Send the option to me. This is question number 1 of the assignment. Question number 1 of the assignment. अभी से शुरू होगा assignment question solve करना. ओके. सो देखो कितना आंसर मेरे को मिला. सी मिल रहा है, ए मिल रहा है, डी मिल रहा है, बी मिल रहा है. आप कितना? दिस एग्जाम क्वेश्चन ये AMCAT में है, जो अभी डेलॉयट आपका सीनियर लोग ने दिए हैं, सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया था. द अमाउंट ऑन ए फॉर ए मंथ्स एट 8% पर annum is what? ए मंथ्स दिया गया है. तो एज आई टोल्ड यू, मंथ्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जो लोग सी लिखे हैं वही करेक्ट आंसर है. ए बी वाला करेक्ट है. ए डी बी वाला रॉन्ग है. सी इज द करेक्ट आंसर. 30% स्टूडेंट्स आर रिटन सी और बाकी लोग सब ए डी पी लिखे हैं. क्यों सी? मैं आपको बता रहा हूँ. ये ए मंथ्स दिया गया है. ए मंथ्स जब दिया जाता है तो ए बाई 1200. पी इज ए, आर इज ए, टाइम इज ए मंथ्स. ए मंथ्स जब होता है तो ए बाई 12 करते हैं, राइट? बिकॉज टाइम ईयर में होना चाहिए. दिस इज द इंटरेस्ट. आपको पूछा गया है अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू ए प्लस दिस मच. अगर ए कॉमन लेते हैं तो आंसर भी ए कॉमन ले गया. 1 प्लस एस स्क्वायर बाई 1200. देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपका गलत हो जाता है. PRT by 100. हाउ मेनी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज राइट वाई. इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डेलॉयट में आया था क्वेश्चन, अभी आपका सीनियर लोगों का आया था. मंथ्स दिया जाएगा तो डिवाइड बाई 12 करेंगे. डेट दिया जाएगा तो डिवाइड बाई 365 करेंगे. बेसिक कंसेप्ट्स. ओके.
Should I move to the next slide? Is it understood? Question number 1 of the assignment. Yes, sir. Yes, sir. Answer is C. Mark कर लीजिए. Somebody please open. Sajid Khan, Sachijita Khan, please open the assignment. Whenever I'll ask you, you have to mark the answer. Correct option C is the correct. Moving to the next slide. Yeah. Send me the answer, please. Question number 2. No, question number 2 नहीं, मैं बताऊंगा question number 2 आएगा तब. You send the answer to me. Whatever I'll discuss, उसमें सारे questions cover हो जाएगा. इसमें क्या पूछा गया? सम मतलब what is asked to you? Principal. प्रिंसिपल पूछा गया है, राइट? जब प्रिंसिपल पूछा जाता है तो जनरल मेथड में सॉल्व कर दे रहा हूँ. P into 3 into 5 by 100 is 450. What is the value of P? 3000 the correct answer. I've received around 50 answers. सब लोग 3000 लिख रहे हैं, except some student. Almost all of you have written 3000. So sum means principal is asked. कितना आसान क्वेश्चन है. सारे लोग 300 लोग आंसर नहीं दे सकते सिंपल क्वेश्चन का, राइट? ओनली 60 आंसर आई हैव रिसीव्ड. जो 60 लोग आंसर दे रहे हैं वही 60 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सिंसियरली याद कर रहे हैं जो बता रहा हूँ. बट गाइस, दिस इज नॉट रिकॉर्ड. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन विद इन सेकंड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स व्हिच विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. प्रिंसिपल को 100% लिया जाता है बिकॉज आई टोल्ड यू द बेस शुड बी टेकन एज 100% इन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस को 100 लेते थे, राइट? इसके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट किया था 10%, 20%. प्रिंसिपल शुड बी टेकन 100%. इंटरेस्ट होगा R into T%. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू R into T. R into T मींस एक साल में अगर 10% है तो 2 साल में 20% होगा, 3 साल में 30% होगा. R into 10 into 2, 10 into 3, 10 into 4. Here 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4. And amount will be 100 plus RT%. प्लीज राइट इट डाउन इन नोटबुक. लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट कर लीजिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है to solve questions on simple interest and compound interest. प्रिंसिपल को 100% लेते हैं, इंटरेस्ट बनता है RT, अमाउंट बनता है 100 प्लस RT. इन दिस क्वेश्चन ये कब अप्लाई करना है? जब प्रिंसिपल हमको चाहिए वही अप्लाई कर, तब अगर ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. देखिए यहाँ पर R कितना, T कितना, कोई बता सकता है? व्हाट इज R, व्हाट इज T? R 5%, T 3 years. So 5 into 3 कितना हो गया? 15% is equal to 450. 100% क्या होगा? 3000. So मैंने आपको बताया था परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में सारे व्हाट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट एक्चुअल नंबर. परसेंटेज में हम ये सॉल्व किए थे, राइट? परसेंटेज में हम सॉल्व किए थे क्वेश्चन. प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व किए थे. कितना परसेंटेज कितने नंबर के साथ इक्वेट करो. This is the method you need to apply to solve questions on simple interest. Is it understood? Please respond in the mic. सर ये 15% क्यों ले रहे हैं? Because ये 450 क्या है? What is this 450? 450 क्या बताइए? Yes, sir. ये 450 क्या है? इंटरेस्ट है या अमाउंट है? क्या है? Amount. अमाउंट. अमाउंट नहीं यार, इंटरेस्ट. Interest. इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इज इतना, मतलब इंटरेस्ट इज 450. इंटरेस्ट होता है R into T. R ना 5 into 3 is equal to 15%. 15% है 450, 100%. ओके सर. How many of you have understood? Please write Y in the chat box. Let me count the number of Y's. कितने लोग समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कहाँ पर अप्लाई करना है ये कंसेप्ट? जब R और T दिया गया है, याद रखो R और T जब दिया गया है और आपको ये इंटरेस्ट दो या अमाउंट हो, जो भी दिया गया, हमको प्रिंसिपल पाने के लिए सम मतलब प्रिंसिपल जब चाहिए, विल अप्लाई दिस. थैंक यू वेरी मच. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अभी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू नहीं हुआ है असाइनमेंट जो मैं दिया था. ये कंसेप्ट व्हाट परसेंटेज इक्वल व्हाट नंबर 100%, क्या ये पढ़ाया गया? आपको बताया था मैंने 1/3 क्वेश्चन सॉल्व होगा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SICI का. बताया था ना, नहीं बताया था? बताओ. Yes, sir. कंसीडर अप्लाइंग. Look at this. This is the question number 2 of the assignment, I believe. पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको पढ़ के आने के लिए.
एक मैन ने डिपॉजिट किया था बैंक में 8.5% पर annum फॉर 2 years। अभी वो अगर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करता है उसको 10% मिलता, तो उसको 300 रुपया ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द सम? अगर उसको जनरल मेथड में करोगे, बैंक का इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट डिफरेंस इज 300 2 years में। प्रिंसिपल को सॉल्व करोगे, मैंने ये आसानी से लिख दिया, बट इसको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए आपको। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको टाइम चला जाएगा। 1 मिनट में कैसे सॉल्व करोगे? Have you read the question? Are you understanding the answer concept? Yes, sir. Yes, sir. But you can solve this question within 2 seconds if you understand my concept। 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कैसे ना? 8.5 और 10 का डिफरेंस बताओ जल्दी। 1.5 1.5 एक साल में 2 में कितना होगा? 3%, 300 है, 100%, 10,000 is the answer। This is the way you could have solved it after being understanding if you know the concept। So 10,000 मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 10,000 2 सेकंड में हम सॉल्व कर लिए। ऑप्शन सी इज द आंसर। सर ये और एक बार क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज सी। How many of you have understood? Please write why। ये once more सर। आपका कब ज्वाइन किए? once more जो बोल रहे हैं। When did you join? 11-13 11-13 में। गुड। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है, राइट, और बता रहा हूँ। देखो ये सही नहीं चाहिए हमको। ये मैंने बताया था इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है एक साल में कितना, बताओ। हैव यू रेड द क्वेश्चन और नॉट? क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया था मैंने, पढ़े या नहीं पढ़े? एक बैंक दे रहा है 8.5, पोस्ट ऑफिस दे रहा है 10%। डिफरेंस कितना है? 1.5 एक साल में अगर 1.5 है, 2 साल में कितना होगा? 3%। वही 3% डिफरेंस का इंटरेस्ट दिया गया। 3% मोर एज इंटरेस्ट इन 2 years। तो 3% अगर 300 है, 100% कितना है? This is understood? Please respond। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। मैं क्वेश्चन देता हूँ पढ़ने के लिए व्हाट्सएप में, राइट, क्लास से पहले राइट। उसी को अगर जनरल मेथड में सॉल्व कर लेते कितना आसान लगता है। हाउ मेनी ऑफ सॉल्व इट अर्लियर? पहले कौन सॉल्व किया था इसको? प्लीज रेस्पॉन्ड इन माइक। आप पहले सॉल्व किए थे? एंड व्हाट इज द मेथड यू हैव फॉलोड? Yes, sir, the normal method। जनरल मेथड। कितना टाइम लगता था? और ये बहुत टाइम लगा। इसमें कितना टाइम लगा? देखो ये मेथड फॉलो करोगे तो कितना टाइम लगेगा, और जो मैं मेथड बताया आपको ये। तो टू बी सिंसियर, अब एप्टीट्यूड स्ट्रांग करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं जाना जरूरत नहीं, मेरे क्लास अटेंड करो 1 साल, आपका मैं कंसेप्ट पूरा स्ट्रांग कर दूंगा शॉर्टकट के साथ। लेकिन मेरे पास रूल्स कुछ है। मेरा असाइनमेंट पहले पढ़ के आओगे, सॉल्व करना जरूरत नहीं, पढ़ लेते तो अच्छा होता, और क्लास टाइम में ज्वाइन करोगे। आई जस्ट हेट लेट कमर्स, आई हेट इनसिंसियर स्टूडेंट्स, राइट। हम स्टूडेंट के लिए इंतजार नहीं करते। यू शुड वेट फॉर मी। कभी कभार हो गया लेट, बट ऑलवेज लेट नहीं होगा। 11:15 में बताया था सब ज्वाइन करने के लिए 112 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे तब तक। 345 स्टूडेंट्स है। चलो रीड दिस क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आई बिलीव। यस। A certain sum amounts to 6,500 in 5 years at 6% per annum. What is the sum? Amounts to मतलब ये 6,500 क्या दिया गया बताओ? What is the 6,500? Amount मतलब क्या है? Principal plus Principal plus SI। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जनरल मेथड में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्टकट बता रहा हूँ। प्रिंसिपल 100 है, सिंपल इंटरेस्ट 80 है, अमाउंट इज इक्वल 100 प्लस 80। अभी आपको बताया मैंने। तो इसको अमाउंट दिया गया है तो अमाउंट के साथ इक्वेट करेंगे। अमाउंट क्या होगा ना? 100 प्लस 6 into 5 कितना बताओ? 6 into 5 is 30। तो 130% 6,500 है। 100% कितना है? 130% is 6,500, 100% is equal to 5,000। 5,000। So 5,000 the answer is question number कौन सा? Question number 3 का answer 5,000 option is question number 3। Srijita, tell me the answer of question number 3 answer 5,000 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। Is it understood guys? Please respond yes or no। Yes, sir. Yes sir। इसको मैं 130 के साथ क्यों कंपेयर किया? बिकॉज अमाउंट दिया गया। पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया गया था, सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस दिया गया था, अभी अमाउंट दिया गया। तो जो दिया गया है उसके साथ कंपेयर करूंगा। बिकॉज व्हाट परसेंट इज इक्वल व्हाट एक्चुअल नंबर, जो मैं बताया था आपको, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है।
कैसे समझ पाएंगे आप जब सॉल्व करेंगे खुद के, मतलब मैं पढ़ाने से पहले आपका थोड़ा तैयारी रहेगा, तब जाकर आप ये कर पाएंगे। देख पढ़ेंगे थोड़ा जनरल फॉर्मूला जानेंगे, मेरा काम है आपको शॉर्टकट देना, राइट। मैं आपको यहाँ पर पीआरटी बाई 100 पढ़ाने नहीं आया हूँ। पीआरटी 100 तो बुक में लिखा है, आप बुक में पढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. So read this question please. This is question 4 I believe. Sudden sum amount to 5,200 5,400 in 2 years, 5,700 in 3 years 6 months, right? What is the sum? इसका जनरल मेथड में करेंगे। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कितना साल का डिफरेंस है बता सकते हो आप? 1.5. 1 year. 0.5. 1 year. 1.5 years का, 1 year नहीं, 1.5. 1.5. 1.5। 1.5 में जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट कितना है? 300. 300. So this is the difference of difference amount is nothing but the interest of 1.5 year. So 1.5 साल का इंटरेस्ट अगर 300 है, तो आपका 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा ना? 400। 2 साल का अमाउंट दिया गया 5,400, 400 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको 5,000 मिल जाएगा। You can solve it mentally. Question number 4, the answer is 5,000 again. That is option, कौन सा ऑप्शन है? D is the answer. Question number 4 का आंसर D है। ये मेंटली सॉल्व करना है। दिस इज द शॉर्टकट। 1.5 साल में डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, राइट। 1.5 साल में अगर 300 है तो 1 साल में 200 होगा, 2 साल में 400 होगा। 2 साल का क्यों निकाल रहा हूँ? कैन यू टेल मी व्हाई आई एम फाइंडिंग अ 2 ईयर इंटरेस्ट? बिकॉज 2 इयर्स का अमाउंट दिया गया है। 2 इयर्स का अमाउंट कितना दिया गया? 5,400 दिया गया है। तो 400 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रिंसिपल मिलेगा। Take the screenshot of this. Is it understood, guys? Please respond. Is it understood? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता है वही मैं दे रहा हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 5 है वही क्वेश्चन है, उसमें रेट पर्सन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेट पर्सन अगर पूछा था, सेम कंसेप्ट है। आपको प्रिंसिपल मिल गया कितना? प्रिंसिपल मिल गया 5,000। यहाँ तक मैंने कराया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। तो 5,000 का 200 रुपया होगा 4%। 200 रुपया क्यों? 1 साल का इंटरेस्ट है 200, राइट। 2 साल का है 400, 1 साल का है 200। 200 5,000 का 4% है। सो आंसर इज 4%। दोनों में से कोई पूछ सकता है, कोई कुछ भी पूछ सकता है। आपको प्रिंसिपल पूछ सकता है, रेट पर्सन भी पूछ सकता है। द आंसर इज 4%, ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इज इट अंडरस्टूड? प्लीज रेस्पॉन्ड, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखो। प्रिंसिपल मिलेगा तब जाकर रेट पर्सन निकाल पाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Read this question, ये भी एग्जाम में आता है। 5,000 rupees is lent to A at 10% and 15%. A and B at 10%, 15% per annum for 3 years. The interest received from both of them is 1,800 after 3 years. How much is lent to B? How many of you have solved this question? Please respond to me in the mic. कितने लोग solve किए थे question? Question number 6 है ये। Yeah, what is the answer? So 4,000. No, it's not correct. So 2,000. 2,000 is the correct answer. क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। मैं 5,000 रुपया 2 जन को दिया, राइट। ए को दिया 10% में, बी को दिया 15% में फॉर 3 इयर्स। इंटरेस्ट दोनों में से मेरे को मिला 1,800 रुपया। तो कितना मैंने ए को दिया हूँ, कितना मैंने बी को दिया हूँ, राइट। इसको सॉल्व इट बाय जनरल मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे? 5,000 को ए को दिया मैंने x, बी को दिया 5। ए को दिया x, बी को दिया 5,000 मैंने सर जनरल मेथड। Sir, you are not audible, sir.
Am I audible now? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the question is discussing 5,000 दिया गया 10% और 15% में एक दिया गया x rupees equal दिया गया 5,000 x. So 10x into 10 into 3 by 100 plus 5,000 x into 15 into 3 by 100 is equal to 1800. If you solve this, you get an answer as x is equal to 3,000 जो कि a को दिया गया और b को दिया गया 2,000. This is the general method of solving the question. Understanding this process समझ में आ रहा है आपको? But this is not required. We can solve these questions very easily with the method which I'm discussing today, but उसका detail में बाद में पढ़ाऊंगा. General method समझ में आया नहीं बताओ? Are you understanding the general Yes, method? sir. Yes, sir. कितना लंबा है देखो उसको मैं एक मेथड है मैं आपको पढ़ाऊंगा. दैट मेथड नेम इज एलिगेशन मेथड. एलिगेशन मेथड में आपको पढ़ाऊंगा 3-4 क्लास के बाद. जैसे कि लाई मेथड है, एबी मेथड है, सब में यूज होता है. ये भी एक मेथड है, हर टॉपिक में यूज होगा. आज दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहीं पर डिस्कशन कर दे रहा हूँ बिकॉज डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको. एलिगेशन मिक्सचर एक क्लास होगा उसमें पढ़ाऊंगा. एलिगेशन मेथड में कहाँ में यूज करते हैं? व्हेन टोटल नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स टू गेट ईच पार्ट विल यूज एलिगेशन मेथड. एक में राइट, ये जो ए को दिया गया 10%, बी को दिया गया 15%, टोटल रिटर्न आया मेरा 12%. 12% कैसे ना 1800 हो गया 3 साल में, एक साल में 600 जो है वो 5,000 का 12% है. ये 10-15 को दो साइड में रखेंगे, 12% जो नेट रिटर्न है उसको बीच में रख देंगे. 5,000 divided 3,000, 2,000 the answer. And this method is called alligation method. Please try to understand. Again in after 3-4 classes. इसका एक 2 घंटा का क्लास है, 2 क्लास होगा, एक नहीं 2 क्लास है इसका. I'm not understanding this. Please write 600 का why. बताऊंगा कितने लोगों को समझ में आया? Please write down why. कितने लोगों को समझ में आया? Yes, I'll repeat definitely. Let me just understand कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो whatever I discussed. Okay, बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है. टोटल इंटरेस्ट कितना साल मिला? बोलो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला कितना साल में? 3 साल में 1800. 3 साल में 1800 तो एक साल में कितना है? 600. वो 600 जो है वो 5,000 का कितना परसेंटेज रिटर्न है? एक को दे रहा हूं मैं 10% में, राइट, दूसरे को दे रहा हूं 15% में. मेरे को ओवरऑल रिटर्न कितना आ रहा है? नेट रिटर्न कितना आ रहा है ना? 12% आ रहा है, राइट. तो वही 12% को बीच में रखूंगा. ये दोनों का डिफरेंस है 3, ये दोनों का डिफरेंस है 2. 5,000 को 3 to 2 में डिवाइड करो. 3,000, 2,000. दिस इज द आंसर. बी का पूछा गया तो 2,000. Are you understanding? Please respond. Yes or no? सर प्लीज एक और बार बताइए कैसे 6,600 आया? 1800 हुआ 3 साल में, तो एक साल में ये 10% पर annum है या पर 3 years है? ऑलवेज रेट परसेंट किस में दिया जाता है? पर एनम. तो हमको पर ईयर इंटरेस्ट निकालना है. 1800 अगर 3 साल में है तो एक साल में होगा 600 ना? नहीं, ओके सर. और ऐसे भी कर सकते हैं. 1800 जो है प्रिंसिपल का, जो 1800 है प्रिंसिपल है 5,000, राइट. आपको 3 साल में रेट कितना करके 1800 आएगा, यहाँ से आपको निकालना है 12%. वो उसको मिडिल में रख देना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कौन सा मेथड है, क्या नाम है इसका बताइए? विच मेथड इट इज? क्या बताना है? एलिगेशन. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, याद रखना. इसको फोटो ले लीजिए. 3,000, 2,000 आंसर. बी का पूछा गया 2,000 आंसर. Now let us discuss about doubling, tripling questions. ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बता सकते हैं? ये जो क्वेश्चन गया अभी, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 2,000. मार्क कर दीजिएगा. सी इज द आंसर. Somebody please write mark the answers and write in the chat box the whole answer. सबका आंसर मार्क कर देंगे. डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चंस क्या है? इस तरह क्वेश्चन आता है. डोंट सॉल्व इट. सम डबल्स इटसेल्फ इन 8 years, तो रेट परसेंट क्या होगा? अगर डबल 8 साल में है तो कितने साल में 4 गुना होगा? ये 2 तरह का क्वेश्चन आता है डबलिंग ट्रिपलिंग क्वेश्चन में. इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सम डबल्स इटसेल्फ इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट परसेंट पर आना. सिंपल इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं मैं. कंपाउंड इसका डिफरेंट कंसेप्ट है. तो सॉल्व इट बाय जनरल मेथड. प्रिंसिपल अगर x लेते हैं, डबल हो जाएगा मतलब अमाउंट 2x हो जाएगा. इज इट अंडरस्टूड? डबल हो गया मतलब 2x हो गया. तो इंटरेस्ट होगा x,
राइट, प्रिंसिपल x, अमाउंट 2x, इंटरेस्ट होगा x. So x into 8 into r into by 100, PRT by 100, इसको x से कैंसिल हो गया तो r 12.5% होगा. I'm giving you 10 seconds more to understand. Please read the question, try to understand. डबल हो गया, x हो गया 2x, इंटरेस्ट होगा x. अगर इंटरेस्ट हो गया x तो x PTR by 100 अप्लाई किया 12.5%. Is it understood? Please respond. Yes or no? Yes, sir. Sir, can Yes, you sir. please show the previous slide once again? नहीं, I'm sorry. Previous slide में कुछ नहीं है. अभी आएगा और एक बार. Previous slide आएगा अभी. ये क्वेश्चन एक था. This is general method. Doubling में general method है. इसको नहीं चाहिए हमको. We don't need this. We can solve this question again within 1 second. 12.5% ये कौन सा क्वेश्चन था बता सकता है कोई? Which question it is? Question number 8, sir. Question number 8 is 12.5%. Option कौन सा होगा? Option E, sir. Option E is the answer. This is not required. We'll solve this question within 1 second. Try to understand. मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत टाइम दे रहा हूँ. 5 सेकंड टाइम दे रहा हूँ. आप ले सकते हैं. प्रीवियस स्लाइड में नहीं जा सकता because I need to teach a lot of things. A sum doubles itself in 8 years. What is the rate % per annum? देखो प्रिंसिपल को मैं 100 लेता हूँ, राइट, अमाउंट हो जाएगा 200. इज इट अंडरस्टूड सो फार? 100 बन गया 200. Yes, sir. उसका डिफरेंस कितना है? 100 200 का डिफरेंस कितना है? वो इंटरेस्ट होता है 100. उसमें आप डिवाइड कर दीजिए 8, आपको रेट मिल जाएगा. यू कैन सॉल्व इट मेंटली. 100 हो गया 200, इंटरेस्ट जो है 100, उसको 8 में डिवाइड कर दीजिए, आपको रेट मिल जाएगा 12.5. इज इट अंडरस्टूड? यस और नो? शॉर्टकट मेथड समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, please. तो 100 इन प्रिंसिपल है, डबल हो जाएगा 200, राइट, डिफरेंस है 100. डिफरेंस जितना भी है उसमें रेट डिवाइड कर दीजिए, टाइम मिलेगा, और टाइम दिया गया डिवाइड कर दीजिए, रेट मिलेगा. बिकॉज वी नो इंटरेस्ट इज नथिंग बट r into t. 100 by r is equal to t, 100 by t is equal to r. ये दोनों का जो डिफरेंस है मिडिल में रख दीजिएगा. दैट डिवाइड बाय रेट आपको टाइम मिलेगा, दैट डिवाइड बाय टी आपको रेट मिलेगा. बिकॉज इंटरेस्ट इज इक्वल आर टी. आर दिया गया तो टी मिलेगा, टी दिया गया तो आर मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन यू सॉल्व इट इन योर माइंड? यस और नो? Yes. Yes. Look at this question and tell me the answer. Jaldi, let me see. Write down the answer to me. Whatever I told. To me. Mark the answer to me, not to everyone. इसमें यस पूछा गया है. Is this given in the assignment? या नहीं है? नहीं है. Sir, Yes, sir, it's given. कौन सा क्वेश्चन? 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 का आंसर बता दीजिए. I've received around 14, 15, 16, okay, 20 answers so far. टाइम इज ओवर. इतना जल्दी आप कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं. 100 बन जाएगा कितना बताओ? 4 टाइम मतलब कितना बन जाएगा? जल्दी बताओ. 400, डिफरेंस कितना है? 300, बाय 10 इज द आंसर, राइट. इतना ही आपको करना है. आई रिपीट, जनरल मेथड बहुत लंबा है, नहीं करना है. शॉर्टकट बता रहा हूँ. प्रिंसिपल होगा 100, बन जाएगा 400. डिफरेंस जो है वो डिफरेंस में आप टाइम डिवाइड करेंगे तो रेट मिलेगा. इसमें रेट डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा. 30 years is the answer. Take the screenshot of this. Try to understand. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Please give me Y in the chat box. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 338 students present so far. So 30 is the answer to question number 7. Please mark the answer, Sujita. C is the answer. Can you solve it in your mind without using pen and paper? yes, sir. Yes, sir. So this is type 1 question. जिसमें रेट पूछा जाता है और टाइम पूछा जाता है. प्रीवियस क्वेश्चन में रेट पूछा गया था, इसमें टाइम पूछा गया है. Let's move to type 2 question. Read this question, please. अगर डबल होता है 8 साल में तो कितने साल में 4 गुना होगा? सिंपल इंटरेस्ट में याद रखो. कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट अलग है, मैं बाद में बताऊंगा. सिंपल इंटरेस्ट में डबल हुआ 8 साल में तो 4 गुना कितने साल में होगा?
अगर आप जनरल मेथड करेंगे तो पहले रेट मिलेगा, फिर रेट को अप्लाई करके फिर टाइम मिलेगा। आंसर इज 24 ईयर्स। जनरल मेथड इज ऑलवेज देयर। पहले रेट मिलेगा 12.5, उसका टाइम मिलेगा आपको 24 ईयर्स। इज आंसर नॉट रिक्वायर्ड। हमारे मेथड में सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल 100 है, 200 हो गया, रेट इज 12.5। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. तो पूछा गया कितने साल में 4 गुना होगा। 100 will become 400. What is the difference? Tell me. 100 will become 400. 300. 12.5 में डिवाइड कर दीजिए, 24 years is the answer. So mark the answer as 24 years. Is it given? Which question it is? Question number 9. Question 9 का आंसर D is the answer. मार्क कर लीजिए। पहले रेट मिलेगा, फिर रेट को डिवाइड करके अब टाइम मिलेगा। चलो इसको भी मैं सॉर्ट कर दे रहा हूँ, राइट? इसको भी मैं सॉर्ट कर रहा हूँ और आसान तरीका बता दे रहा हूँ आपको। सुनिए ठीक तरह से। 100 बन जाएगा 200। व्हाट इज द डिफरेंस? टेल मी, जल्दी बताइए। 100, 100. 8 साल में 100 बनेगा 400। डिफरेंस कितना है बोलो? 300. 300 is how many times of 100? 3 times. 3 times of 8 is the answer. That's it. मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। This happens in simple interest, not in compound interest. I repeat, 100 बन गया 200 8 साल में, 100 बनेगा 400। डिफरेंस इज 300। 100 का 300 का डिफरेंस 3 times है, तो 3 times of 8 is the answer. Are you understanding, guys? Yes or no? बहुत ज्यादा ऊपर से जा रहा है क्या आज? No, sir. Understanding. Sir, yes, sir. Understood, sir. थोड़ा प्रिपेयर आपकी तरफ से रहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या पूरा धीमा हो जाता है आप लोग सब। मतलब कुछ लोग को छोड़ के करीबन 50 लोग करते हैं, बाकी लोग सब पूरा एकदम पूरा स्लो ले लेते हैं। आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप एप्टीट्यूड पढ़ेंगे बहुत लोगों में से, बहुत टीचर आपका एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। याद रखो, इन फ्यूचर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा कमी डेफिनेटली आप महसूस करेंगे जब आपको दूसरे टीचर से क्लास करेंगे। मैं जनरल मेथड बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, उसका शॉर्टकट बताता हूँ, कंसेप्चुअल कंसेप्ट। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा खुद ध्यान दें तो आपका एप्टीट्यूड पूरा 100% हो जाएगा फॉर ऑल द एग्जाम इन फ्यूचर। मे बी प्लेसमेंट, कैट, गेट, यूपीएससी और कंपनी से कंपनी जंप करना है, प्रमोशन लेना है, हर जगह एप्टीट्यूड आएगा, राइट? थोड़ा सा अगर देखो, आपको मैं आई एम नॉट दैट लाइक बड़ा बात बता नहीं रहा हूँ। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए मेरे से तरसते हैं कि सर क्या कब होगा क्लास कब। अभी भी मेरा प्रीवियस स्टूडेंट बहुत जगह है, सर मेरे को एप्टीट्यूड पढ़ा दीजिए, मेरे को गेट देना है, कोई बोल रहा है मेरे को जीआरई देना है, जीमैट देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं मैं। इज इट अंडरस्टूड? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर। इज इट देयर इन द पेपर? इसमें है क्या? नहीं है। No, sir. इज इट देयर? No, sir. नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया क्या? कहाँ तक किया? Yes, sir. 9 तक हो गया. 9 तक हो गया। 10, 11, 12 अभी ऑलरेडी मैं कंसेप्ट डिस्कशन कर चुका हूँ। 10, 11, 12 आई रिसीव 10 आंसर सो फार। टाइम इज ओवर। 3 गुना का मतलब कितना टाइम्स होगा? 300 होगा। डिफरेंस कितना बताओ जल्दी? 200. 200. No, sir. 200। 900 9 गुना का मतलब 900। डिफरेंस इज 800। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 200? 4 4 times. times of 12 is equal to 48. 48 is the answer. Is it clear? Please respond in the mic. Yes or no? Sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, thank you very much. So 4 times होगा। This is it for today. But I'll discuss 3 more questions. 10, 11, 12 जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। इसमें 2 क्वेश्चन जो कि प्लेसमेंट में नहीं आता, इंस्टॉलमेंट और डेट ड्यू क्वेश्चंस, जो कि आपको नहीं पढ़ा रहा है मैं यहाँ पर, जरूरत नहीं है प्लेसमेंट के लिए। वो कैट के लिए आता है, कैट पे पढ़ाया जाएगा आपको। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि 10, 11, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, आई विल शेयर द क्वेश्चंस नंबर 10, 11, 12। Is my word file visible to all of you?
Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्लास आपका कब है बता सकते हैं आप? कैन यू टेल मी नेक्स्ट क्लास कब है? ट्यूसडे को कितने बजे? सर शाम 7:30 to 8:30. 7:30. 7:30 से मैं ट्यूसडे क्लास नहीं लूंगा, वो मैं वेंसडे को लूंगा। ट्यूसडे क्लास नहीं होगा, एप्टीट्यूड वो टेक्निकल होगा। मैं सर के साथ क्लास इंटरचेंज किया हूँ, मेरा कुछ काम है, तो आई विल बी टेकिंग ऑन वेंसडे, याद रखो। सो वेंसडे को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, डोंट मिस द क्लास। इज दैट क्लियर? यस सर। सर ये क्या क्लास मतलब होगा क्या, कौन होगा? टेक्निकल राजेश सर। सर तो ये रेगुलर हो गया कि मतलब बस नेक्स्ट क्लास? नहीं, एक ही दिन के लिए, मेरा काम है ट्यूसडे को। ओके सर, इसलिए रेगुलर नहीं। सो पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। A man took loan from bank at 12% per annum. After 3 years, he has to pay 5,400 interest only. The principal amount कितना होगा? तो 12% है, एक साल में, 3 साल में होगा कितना परसेंट बोलो? 36. 36%. 36% is for 5,400. What is 100%? 36% is 5,400. लिख दीजिए 36% is 5,400. 100% कितना होगा? So 5,400 divided by 36 into 100. 15,000 is the answer. Which option is 15,000? Option E. मार्क कर दीजिए, ऑप्शन E is the answer. Are you understanding? Respond to me, my yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving to the next question, question number 11 पढ़ लीजिए. How much time will take 450 to yield 81 as interest 4.5% per annum simple interest? तो 450 क्या 4%, 4.5%, 416, ये हो गया 4/20, 18 रुपया प्लस ये हो गया 2.25, 20.25 एक साल का है। तो 81 बनाने के लिए 4 साल लगेगा। बी इज द आंसर, 11 का आंसर बी है। आई एम नॉट यूजिंग PRT by 100। आप PRT by 100 यूज करेंगे। आई टोल्ड यू टू कैलकुलेट इन योर माइंड विदाउट यूजिंग PRT by 100। कैसे किया मैंने? 450 का 1% कितना बताओ? 450 का 1% टेल मी। Am I right? So 18 plus 2.25 कितना हो गया? Discussed in the class, yes or no? Understood the concept? These are all exam questions. Of you please be on time. आपका वेडनेसडे क्लास 7:30 मतलब बी ऑन टाइम एट 7:30। 7:31 होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। रीड द क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज। Guys, you need to understand the question before solving it. Already I have discussed it. 3 साल के लिए दिया गया, 2% हायर रेट, तो 3 into 2 कितना होगा बताओ? कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? 3 into 2 कितना? 3 साल के लिए 2% हायर रेट, डिफरेंस कितना है बोलो? 6%। 6% अगर ज्यादा होगा, मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. 6% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में 2% तो 3 साल के 3 years में 6%। 6% is 360, 100% कितना है? 6 6 36, आंसर इज 6,000 रुपीज। ऑप्शन सी इज द आंसर। देखो कितना जल्दी आप आंसर कर रहे हो, और आपको कंसेप्ट पता है तो, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। सो और बार आंसर मार्क कर दीजिए, वट एवर आई टोल्ड, आंसर मार्क कर दीजिए। सर, हाँ जी सर 10 और एक बस। 10 और एक बार। हाँ सर, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। जाऊंगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है। 2 का आंसर कितना था बताइए तो? सी सर। 2 का आंसर सी है। 3 का आंसर 5,000। 40% कितना है बताओ? 6 5 30।
What is the answer? Question number Yes, 3. sir. 5,000. 5,000. 130. Question number 4 का आंसर भी 5000 है, 5 का आंसर A है, 6 का आंसर है 2000, 7 का आंसर ऑलरेडी बता दिया आपको 4 टाइम्स होगा। इन how many years will sum become 4 टाइम 10%? 30 yes, 300/10 E हो गया, डबल होगा 12.5 में E हो गया। सम डबल्स एट 8 years सिंपल इंटरेस्ट एंड how many will become 4 टाइम्स? कितना हो गया आंसर? और डबल हो गया 100 300 3 गुना 24 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने आपको, कितना हुआ था आंसर बताया हमने अभी बताया। 10 का आंसर कितना है? 15,000. 15,000 somebody has got out, I'll discuss. and इसका आंसर कितना हुआ? 6,000। 6,000. 10 का आंसर है 12% दिया, 3 साल में 5,400 दिया, राइट। तो 1 साल में 12% हो गया, 3 साल में हो गया 36%। so 36% इज इक्वल टू 5,400। 100% कितना है? 11 नंबर स्पेंड कर सकते हैं। 11 नंबर 1 साल में कितना है? और कितना होता है मैंने 20.25 फॉर 1 ईयर। तो 81 होने के लिए 4 साल लगेगा। द कंसेप्ट। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। प्लीज राइट डाउन योर फीडबैक, कैसा लगा आपका क्लास, एंड हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द ग्रुप। आई हैव गॉट अनदर क्लास, सो आई हैव टू